See here in the last lecture, we have seen the carboxylic acids are acidic in nature. Correct? We have seen that. What is the point we have said here? Carboxylic acids are acidic in nature. Okay, this part we have seen. And we also explained why they are acidic in nature, because normally we know that when we take carboxylic acid, RCOOH, when dissolved in water gives you RCOO minus and H plus. RCOO minus are called as carboxylate ion. Are called as the carboxylic ion, and these are resonance. These are resonance stabilized. मतलब ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बोक्सिलेट आयन, एंड कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल. ये अगर स्टेबल है तो ये ज्यादा से ज्यादा बनेगा, प्रोड्यूस होगा. और ये अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके साथ और क्या प्रोड्यूस होगा? H प्लस आयन, एंड बिकॉज ऑफ विच वी गेट मोर number of H plus ion, because carboxylic acid will produce more and more this. Why? Because they are stabilized, and because they are stabilized, along with them what we get? H plus ion, and more number of H plus ion will be obtained. And because the more number of H plus ion we get, what we can say here? Carboxylic acids are acidic in nature. Okay, हमें ज्यादा से ज्यादा H plus ion मिल जाएंगे, इसलिए carboxylic acidic in nature है. This much we have seen in the last lecture. Now again we'll see, go for the next heading. The acidic strength of carboxylic acid is expressed in terms of Ka. The acidic strength of carboxylic acid, मतलब हमारा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है. The acidic strength of carboxylic acid is expressed in terms of Ka. Ka मतलब it is called as a dissociation constant. Ka मतलब it is called as a dissociation constant of acid. Dissociation K is called as what? Dissociation constant of acid. 1 minute, I just write this as the number 1. This is the number 2. Now we'll see how to find out the value of K. So here we have like Ka equal to यहाँ पे क्या मिल रहा है? RCOO. So here I'll just write what? RCOO minus into H plus divided by RCOOH. मतलब हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है वो एसिड का स्ट्रेंथ कितना है वो किसे पता चलेगा? हमें Ka के वैल्यू से. Ka का जो आंसर आएगा, Ka का जो वैल्यू आएगा वो हमें बताएगा कि हमारा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है. करेक्ट. एंड हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ Ka? Ka इक्वल टू व्हाट इज Ka? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. और Ka का फॉर्मूला क्या है? देखो, RCOO minus and H plus, ये प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय द मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. बिकॉज ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है.
तो हमें के का वैल्यू पता चलेगा। और देखो के क्या कर रहा है, के ए डिपेंड्स अपॉन एच प्लस, मतलब हमारा जो के है, के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस। के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच प्लस, मतलब अगर हमें ज्यादा एच प्लस आयन मिलेंगे तो एसिड कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर हमें कम H प्लस आयन मिलेंगे तो ये एसिड कैसा रहेगा, वीक। सो व्हाट वी हैव सीन हियर, द Ka, what is Ka? Dissociation constant of acid. Ka is directly related to H plus ion concentration. Ka is directly related to H plus ion concentration. So what we can say, higher the H plus ion concentration, stronger is the acid, and lower the H plus ion concentration, weaker is the acid. So H plus ion, I can write here, higher H plus ion concentration, square bracket का मतलब concentration, higher H plus ion concentration means stronger is acid and less, or we can say lower H plus ion concentration, square bracket is called as concentration, weaker is acid. मतलब हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक हमें किसे पता चलेगा, H प्लस आयन से पता चलेगा। और H प्लस मतलब हमें यहाँ पे K का वैल्यू मिलेगा, Ka का वैल्यू मिलेगा। हायर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ Ka, weaker is the acid, because Ka and H plus ion are directly proportional. So higher the concentration of H plus ion, stronger is the acid. Okay, and lower the concentration of H plus, weaker is the acid. Okay, H plus, higher H plus and concentration, stronger acid, मतलब higher Ka भी higher रहेगा। और अगर लोअर H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन है तो एसिड कैसे रहेगा, वीक रहेगा। तो हमारा Ka भी कैसे रहेगा, लोअर रहेगा, लोअर के। ओके, सो व्हाट यू लर्न हियर, हायर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ऐसे लिखा, हायर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ Ka, वीकर इज द एसिड। तो हमें एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है किसे पता चलेगा, from the value of Ka, from the value of K. Okay, but acidic strength is more conveniently but acidic strength is more conveniently expressed in terms of pKa. Acidic strength is more conveniently expressed in terms of pKa. एक मिनट से, pKa, p small, k small, a small, pK। मतलब हम लोग K से पता कर सकते हैं कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बट उससे भी ज्यादा सिंपल क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ पीके। तो इन द रिलेशन कैसा है, मतलब यहाँ पे पीके इक्वल टू 1 अपॉन log K, pKa इक्वल टू log 1 अपॉन Ka, या इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो, pK इक्वल टू माइनस log K। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, देखो इसे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि pKa एंड K आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। pKa एंड K ये दोनों एक ही फॉर्म है,
लेकिन यहाँ पे मैंने खाली माइनस लिखा, तो दोनों फॉर्म का एक ही है। खाली हमें यहाँ पे देखना है कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमें किससे पता चलेगा? के ए से पता चलेगा। हायर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, लोअर द वैल्यू ऑफ के ए वीकर इज द एसिड। बट के ए से भी ज्यादा कन्वीनियंट क्या रहेगा? पीके ए रहेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीके। तो अभी पीके ए और के में रिलेशन क्या है कि पीके एंड के आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो आई कैन से हियर पीके ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। दोनों के बीच में रिलेशन इनवर्स है। इनवर्स का मतलब अगर मुझे के का वैल्यू लोअर रहा तो इफ के ए इज लोअर, के ए लोअर, के अगर लोअर रहेगा, ये दोनों इनवर्स है, तो के लोअर रहेगा तो पीके क्या रहेगा? हायर। लेकिन हमें मालूम है कि के अगर लोअर रहेगा तो एसिड इज विच एसिड? वीक एसिड। मतलब अगर मुझे के से डिसाइड करना है तो लोअर द वैल्यू ऑफ के ए मतलब वीक एसिड, और अगर मुझे पीके से कंपेयर करना तो पीके कैसा रहेगा? हायर रहेगा। मतलब के लोअर रहेगा तो वीक एसिड है, बट अगर मुझे सेम एक्सप्रेस करना है पीके ए के टर्म में तो पीके कैसा होना चाहिए? हायर। हायर द वैल्यू ऑफ पीके ए मतलब वीक एसिड। सिमिलरली इफ के ए इज हायर, अगर एक के ए का वैल्यू हायर रहेगा, के ए हायर रहेगा मतलब पीके लोअर रहेगा। पीके इज लोअर और पीके लोअर है, बट वी नो हियर हायर द वैल्यू ऑफ के मतलब स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, सो एसिड इज स्ट्रॉन्गर इज एसिड। देखो यहाँ पे के ए लो था मतलब वीक एसिड, के ए हायर था मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड। बट अगर मुझे अभी पीके के टर्म में बोलना है तो हायर द वैल्यू ऑफ पीके वीकर इज द एसिड and lower the value of pKa stronger is the acid. So now we can say here कि अगर मुझे pKa के टर्म में बोलना रहेगा, अभी Ka से हमें pKa का वैल्यू मिला, तो pKa के टर्म में अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे lower the value of pKa, lower the value of pKa stronger is the acid. लोअर द वैल्यू ऑफ पीके, देखो लोअर के हायर मतलब पीके लोअर मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, सो लोअर द वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एंड हायर द वैल्यू ऑफ पीके वीकर इज द एसिड। देखो, तो फाइनली नाउ वी गॉट द कंक्लूजन कि अगर मुझे एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है किसे डिसाइड करना पड़ेगा? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ पीके। और कैसे डिसाइड करोगे? लोअर द वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एंड हायर द वैल्यू ऑफ पीके वीकर इज द एसिड। सो फाइनली नाउ इन आवर चैप्टर नाउ हमें एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है किसे डिसाइड करना है? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ पीके। लोअर द पीके stronger is the acid and higher the value of pKa weaker is the acid, correct? Okay, ये हमारा थर्ड पॉइंट रहा। तो इन द थर्ड पॉइंट ये कंसेप्ट हमें मिला, लोअर वैल्यू ऑफ pKa stronger is the acid, higher the value of pKa weaker is the acid. So finally we have learned how to decide the strong and weak acid. Okay, and I'll go for the next further. 1 minute.
Yes, next here, influence of electronic effects on acidity of carboxylic acid. मतलब influence of electronic effect on acidity of carboxylic acid. मतलब कौन से फैक्टर है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ कम ज्यादा करेंगे, और कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा. करेक्ट, कौन से? सो हियर नाउ विल हैव द फर्स्ट पार्ट, दैट इज normally, like suppose for example we say here R COOH, RCOOH, ये जो हमारा R है, R मतलब अल्काइल ग्रुप है, R मतलब अल्काइल ग्रुप. So R has influence, R has influence on, R has influence on the acid strength of कार्बोक्सिलिक एसिड. हमारे जो यहाँ पे R है वो R डिसाइड करेगा कि हमारे एसिड का स्ट्रेंथ कितना रहेगा, द स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक रहेगा. तो R हैज द इन्फ्लुएंस ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? R के ऊपर. सो R हैज द इन्फ्लुएंस ऑन the acid strength of the carboxylic acid. Okay, now 1 minute. Suppose for example we have here, that is dash COOH, and here the group R. R की जगह क्या रहेगा? EWG. EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. EWG का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, मतलब कैसे होगा? देखो यहाँ पे कि अगर ये हमारा सेम स्ट्रक्चर मैंने ऐसे लिखा कि R C डबल बॉन्ड O OH, लेकिन हमारा R कैसा रहेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. मतलब नॉर्मली कैसे होता है, इसे हम एसिड कभी भी बोलते हैं कि अगर हमें H+ आयन मिलेगा तो एसिड. कोई भी सब्सटेंस अगर हमें H+ आयन दे देगा तो एसिड. और H+ आयन मिलने के लिए O और H के बीच में बॉन्ड कैसा होना चाहिए? वीक. O और H के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए. ये बॉन्ड ब्रेक हो गया मतलब एसिड. ये बॉन्ड कैसा होना चाहिए? बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारा जो है, ये बॉन्ड हमारा वीक, मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा. और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजीली तो हमें क्या मिलेगा? RCOO माइनस एंड H+ मिल जाएगा. और अगर हमें H+ आयन मिल रहा है तो ये कैसे बनेगा? एसिडिक बनेगा. तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, लेकिन अगर COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये R क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा. R कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन O से इलेक्ट्रॉन लेगा, और O H से इलेक्ट्रॉन लेगा. तो बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड विल बिकम वीक. और बॉन्ड अगर वीक बनेगा तो H+ आयन इजीली प्रोड्यूस होंगे. और H+ आयन अगर इजीली प्रोड्यूस हो गए तो हमारा एसिड कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड.
Shall I explain here? मतलब अगर हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करेगा, मतलब देखो अगर फॉर एग्जांपल R C डबल बॉन्ड O OH, अगर हमारा R कैसे रहेगा, R हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, मतलब R किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन से, करेक्ट। कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, O से, O किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, H से। तो ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड will become weak, और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, मतलब हमें क्या मिलेंगे, द बॉन्ड विल बिकम वीक एंड वीक बिकॉज ऑफ विच वी गेट मोर H plus ion. And if we get more H plus ion, then the given compound is more acidic in nature. More acidic in nature. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। तो अगर यहाँ पे ये हमारा ए पार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जांपल बी में देखो, यहाँ पे मैंने लिखा COOH और इसको अटैच करेगा EDG। EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। EDG का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब देखो कैसे आएगा, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O OH। अगर हमारा R इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, डोनेट करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा O को, तो O को इलेक्ट्रॉन कार्बन दे रहा है, तो O will not take electron from H. R is giving electron to carbon, carbon is giving electron to oxygen, फिर ऑक्सीजन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन H से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसका मतलब ये जो हमारा बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस में H प्लस आयन कम मिलेंगे, तो हमारा एसिड कैसे बनेगा, वीक एसिड। कैसे बनेगा, वीक एसिड। तो इसका मतलब हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो किससे अटैच करे, वो मैटर कर रहा है। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखा कि कार्बोक्सिल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होगा, तो R विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन से, CO से विड्रॉ करेगा, और ये विड्रॉ करेगा H से, तो ये बॉन्ड बनेगा वीक, और बॉन्ड अगर वीक है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और हमें क्या मिलेंगे, मोर H प्लस आयन मिलेंगे, तो मोर एसिडिक इन नेचर। लेकिन अगर हमारा ये ग्रुप कैसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा COO को, COO फिर H से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन हमें मिलेंगे, तो ये हमारा एसिड कैसे बनेगा, वीक। तो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ पे अटैच है उससे डिसाइड होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, कि हमारा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, करेक्ट। यहाँ पे I'll just write down the order, the effect of the effect of the following substituent in increasing the acidity of carboxylic acid. Okay, the effect of substituent in increasing the acidity of the carboxylic acid, मतलब हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन से ऑर्डर में
एसिडिटी बढ़ाएंगे। सबसे पहले कौन सा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल CF3 अगर रहेगा, मतलब ये R की जगह क्या रहेगा, CF3 रहेगा। तो CF3 हमारे एसिड को, मतलब CF, अगर मैंने यहाँ पे COOH को CF3 अटैच किया, CF3, तो CF3 will donate more electron, तो CF3 is a more acidic। उसे कम कौन रहेगा, NO2, उसे कम रहेगा साइनाइड FCl, Br, I और फिनाइल। मतलब अगर हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप को CF3 अटैच है तो हमारा कार्बोक्सिल कैसे, बिकॉज ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हमने क्या बोला है यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट इन इंक्रीजिंग द एसिडिटी, इंक्रीजिंग द एसिडिटी, मतलब अगर हमारे COOH को ये ग्रुप अगर अटैच है तो हमारा एसिड कैसे रहेगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर हमारे CO को pH अटैच है तो एसिड कैसा रहेगा, वीक। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल COOH अटैच टू NO2, ऐसा अगर है, या मैं बाद में एग्जांपल लूंगा, और इतना ध्यान में रखो कि अगर हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच करेगा CF3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच करेगा NO2 तो वीक। लेकिन ये दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो ये रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रहेगा तो वीक एसिड। ये दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ये रहेगा तो वीक एसिड, ये रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारा ऑर्डर है जो हमें आगे चल के काम आएगा। मतलब अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करना है तो ये सब्स्टिट्यूएंट अगर रहेगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड, ये रहेगा तो वीकर, इससे ये रहेगा तो वीकर 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 एंड वीकर। ये हमारा स्ट्रेंथ है। ओके, आई विल जस्ट टेक वन एग्जांपल। One minute. Fine. फिफ्थ पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया H C डबल बॉन्ड O OH is a formic acid and CH3 C double bond O OH is a एसिडिक एसिड। ये है हमारा फॉर्मिक एसिड और ये है हमारा एसिडिक एसिड। दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है वो हमें देखना है। दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है, इन एसिडिक एसिड, in acetic acid COOH is attached to methyl group. In acetic acid COOH group is attached to dash CH3 group. COOH attached to which group? CH3 group. And it is electron donating group. It is electron donating group. मतलब ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी देखो CH3 अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा COO को, तो ये OH से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। H से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो हमें H प्लस आयन नहीं मिलेंगे। सो इन एसिडिक एसिड COOH group attached to methyl group, and methyl group is the electron donating group, and therefore acetic acid is weaker acid than
फॉर्मिक एसिड, क्योंकि देखो ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड किससे अटैच करा H, और H कुछ भी इफेक्ट नहीं बता रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं, तो इसलिए फॉर्मिक एसिड, ये कंपैरिजन फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में कंपैरिजन में एसिडिक एसिड इज द वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। अगर आपको दोनों का पीके वैल्यू अगर कंपेयर करना है तो एसिडिक एसिड का जो पीके वैल्यू होता है, जस्ट हमें कोई भी वैल्यूज नहीं लिखने, लेकिन अगर जस्ट कंपैरिजन करना है तो एसिडिक एसिड का पीके वैल्यू कितना है 4.76 और फॉर्मिक एसिड का पीके वैल्यू कितना है 3.75। तो हमें मालूम है लोअर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ये 3.75 और ये 4.76 ये लोअर है, एंड लोअर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चला कि सपोज इन द एग्जाम दे आस्क द क्वेश्चन इन फॉर्मिक एंड एसिडिक एसिड व्हिच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इन एसिडिक एसिड COH ग्रुप is attached to methyl group, and methyl group has the electron donating group, and therefore acetic acid is a weaker acid than the formic acid, because formic acid has only hydrogen atom attached to carboxyl group, correct, attached to carboxyl group there. तो ये हमारा दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन बिटवीन द फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। Then we'll go for the next one. Next, अगर मैंने एग्जांपल दे दिया CH3 COOH is acetic acid and CH2 COOH and H is replaced by F. देखो CH3 COH is acetic acid and one of the hydrogen atom from here is replaced by what? F. F is a fluorine and which is called as the fluoroacetic acid. दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है? अभी अगर आप कंपैरिजन करोगे यहाँ पे तो CH3 ग्रुप, यहाँ पे जो हमारा CH3 ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे CH2 को कौन अटैच है? फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CH3 था और यहाँ पे CH3 के एक हाइड्रोजन की जगह क्या लिखा? F लिखा, तो F के कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना। तो अब ये CH3 क्या करेगा? CH3 इलेक्ट्रॉन देगा COO को, फिर OH से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस एंड प्रोड्यूस विल बी लेस। So because CH3 group is electron donating group, the number of H plus ion produced will be less, and because number of H plus ion produced will be less, it is weak acid. But here in this example, F has which effect? Electron withdrawing group. तो F इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कहां से? CH2 COO से, और O इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा H से, तो ये बॉन्ड वीक होगा, and because the bond is weak, H will produce more. So because of electron withdrawing group, the number of H plus ion produced will be more.
and because we get more number of H plus ion, it is going to be strong acids. मतलब अगर हम एसिडिक एसिड और इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये हमारा वीकर एसिड है. अगर आपको वैल्यू भी कंपेयर करना है तो एसिडिक एसिड का वैल्यू कितना देखा था हमने 4.76. एसिडिक एसिड के लिए उसका पीके वैल्यू कितना था 4.76 और इसके लिए उसका पीके वैल्यू कितना आ रहा है उसका 2.56. और हमें मालूम है लोअर द वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रॉन्ग, मतलब दोनों में से कंपेयर करो, इसका पीके वैल्यू लोअर है और इसका पीके वैल्यू हायर है. लोअर द वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रॉन्गर इज द एसिड and higher the value of pKa weaker is the acid. Okay, so what we have seen here कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेगा तो एसिड का एसिडिक पावर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिक का एसिडिक पावर कम होगा. करेक्ट. तो अभी हमें देखना है यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप. तो आई जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट. First of all you can say halogens are electronegative. Halogens are electronegative atoms, and exert more electron withdrawing effect. करेक्ट. मतलब अगर हमारे पास हैलोजन रहेंगे, हैलोजन कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण दे हैव द मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. मतलब अगर मैंने इनके कंपैरिजन कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल CH2COOH and here I will have the F. CH2COOH and we'll have here Cl. CH2COOH and here we'll have a Br. CH2COOH and here we'll have the I, and last CH3COOH. यहाँ पे among all the halogen fluorine is more electronegative. उसे कम कौन रहेगा क्लोरीन, उसे कम कौन रहेगा Br और उसे कम कौन रहेगा I. तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इसलिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है. मतलब अगर हमको उनका पीके वैल्यू अगर लिखेंगे, हमें कोई भी वैल्यू लर्न नहीं करना है. 2.56, 2.86, 2.90, 3.18 एंड 4.76. तो ये देखो, ये फ्लोरो एसिटिक एसिड है, ये क्लोरो एसिटिक एसिड है, ये ब्रोमो एसिटिक एसिड है, ये आयोडो एसिटिक एसिड है और ये ओनली एसिटिक एसिड है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए ऊपर वाले का पीके वैल्यू लो है, मतलब दे आर एसिडिक इन नेचर, वीक एसिडिक. और इनके बीच में अगर कंपैरिजन करोगे तो जब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा विल बिकम मोर एसिडिक. सो अमंग ऑल, अगर मुझे ऐसा नीचे जाऊंगा तो क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ is as I go down the acidic strength goes on decreasing. मतलब एक 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स में अगर मुझे कंपैरिजन करना रहेगा तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, लोअर द वैल्यू ऑफ पीके, और ये सबसे वीक एसिड है, हायर द वैल्यू ऑफ पीके.
लेकिन इसका एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हैलोजन. क्यों? बिकॉज हैलोजन इज more electronegative than chlorine. Chlorine is more electronegative than bromine, and bromine is more electronegative than iodine. So what I can say here, more is the electronegative halogen. More the electronegativity of halogen, more the electronegativity of the halogen, stronger is the acid. Stronger is the acid. Okay. Yes. Now I'll go for the next point. Next point. As the number of halogen atom, as the number of halogen atom increases, as the number of halogen atom increases, the acidic strength the number of halogen atom increases, the acidic strength of carboxylic acid increases. मतलब अगर हमारे पास हैलोजन बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा. कैसे? देखो अभी फॉर एग्जांपल the first COOH, and then here I will have what? C attached to 3Cl. Then I have COOH, C, H, and 2Cl. Then we have COOH and C, H, H, and Cl, and then here we'll have COOH and having CH3. देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक हैलोजन एटम है, यहाँ पे दो हैलोजन एटम है और यहाँ पे तीन हैलोजन एटम. So what I've said here, as the number of halogen atom increases, the acidic strength of the carboxylic acid goes on increasing. मतलब more the number of halogen atom. लेकिन यहाँ पे एक होना है कि तीनों हैलोजन सेम है, यहाँ पे दो हैलोजन और यहाँ पे एक हैलोजन, यहाँ पे हैलोजन नहीं है. तो अगर मैं इनका पीके वैल्यू अगर लिखूंगा यहाँ पे पीके, तो पीके वैल्यू अगर मुझे कंपेयर करना रहेगा तो एक मिनट, इसका वैल्यू आता है 0.6, 1.26, 2.86 and 4.76. And among all, which is the value lower value? 0.6 is the lower, तो it's wrong. ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? रीजन क्या है? देखो एक मिनट, देखो यहाँ पे रीजन क्या है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Cl इज हैलोजन, और यहाँ पे हमने देखा था कि हैलोजन्स हैव विच इफेक्ट? हैलोजन हैव विच इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट तो है ही है, लेकिन यहाँ पे एक साथ कितने हैलोजन आ गए? तीन. मतलब तीनों क्लोरीन कहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे? कार्बन से. कार्बन से किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? CO से. तो ये बॉन्ड वीक होगा. ये बॉन्ड अगर वीक हो गया तो H+ आयन विल बिकम मोर, and because the H+ ion will become more, it will become more acidic in nature. यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे बिल्कुल एक भी नहीं. तो what I said here, as the number of halogen atom increases, the acidic strength of the carboxylic acid goes on increasing. देखो यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप और ये कार्बन पे तीन हैलोजन, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन पे दो हैलोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप और इमीडिएट कार्बन एटम पे एक हैलोजन. तो नंबर ऑफ हैलोजन गोज ऑन इंक्रीजिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. एसिडिक स्ट्रेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके,
So as the number of halogen atom increases, the acidic strength also goes on increasing because it has more electron withdrawing. It has more electron withdrawing effect. As I go here, acidic strength goes on decreasing in this order. As I go down, acidic strength क्या हो रहा है? Acidic strength decreases in this order. मतलब ये stronger acid है और ये weaker acid है. Okay? Yes. Next one. Yes. The next point. 1 minute. I'll take the example. COOH, CH2, Cl. COOH, CH2, CH2, Cl. COOH, CH2, 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 Cl. अभी देखो यहाँ पे ये COOH है. फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आइटम आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा. और अल्फा पे हैलोजन आता है, क्लोरीन. फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन आइटम अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा, तो बीटा पे हैलोजन. फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन आइटम अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन आइटम बीटा और गैमा. गैमा की क्या है? हैलोजन. तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है. लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज नियर द हैलोजन. फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे थोड़ा दूर चला गया और यहाँ पे और थोड़ा दूर चला गया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देखो, अगर कंपैरिजन करोगे तो द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is on alpha carbon atom, electronegative atom on beta carbon atom, electronegative atom on gamma carbon atom. तो यहाँ पे नजदीक है, यहाँ पे दूर है. ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा COOH से, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा COOH से, लेकिन यहाँ पे विड्रॉइंग पावर ज्यादा रहेगा बिकॉज इट इज नियर टू फंक्शनल ग्रुप. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम रहेगा बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप. तो अगर इनका मतलब मुझे पीके वैल्यू अगर कंपेयर करना रहेगा, अगर मुझे इनका पीके वैल्यू अगर कंपेयर करना रहेगा तो इनके बीच में अगर मैं मतलब पीके वैल्यू नहीं यहाँ पे दिया हुआ, तो अगर इनके यहाँ पे एज आई गो डाउन द ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ goes on decreasing. मतलब among all this is a strong acid. तीनों में से ये रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये रहेगा वीक एसिड. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज तीनों के पास सेम हैलोजन है बट द पोजीशन इज ऑन डिफरेंट कार्बन एटम. सो व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर as the electron, or I can say as the electronegative atom goes
away from carboxyl group as electronegative atom goes away from carboxyl group, its electron withdrawing power decreases and therefore acidic strength also goes on decreasing. Okay, as the electronegative atom goes away from the carboxyl group, its electron withdrawing power will decrease and therefore acidic strength also goes on decreasing. Okay, next. Take next. Acidity of aromatic carboxylic acid. Acidity of aromatic carboxylic acid. Aromatic. अभी aromatic में कैसे, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा C, यह हमारा बेंजीन रिंग है attached to COOH is called as a benzoic acid. यहाँ पे दूसरा aromatic acid COOH and यहाँ पे है NO2 which is called as a 4-nitro benzoic acid. and यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया हुआ है COOH and CH3 4-methyl benzoic acid. 4-methyl benzoic acid. अगर मैं इनका कंपैरिजन भी करूंगा तो इसका pK वैल्यू है 4.2. हमें कहाँ पे भी वैल्यूज नहीं लिखने, इसका pK वैल्यू है 3.41 और ये यहाँ पे इसका pKa वैल्यू है 4.4. तो सबसे पहले आपको pKa वैल्यू देख के भी पता चलेगा कि ये तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है. तीनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट किया था कि ये बेंजोइक एसिड है. ओके, ये बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड और यहाँ पे क्या है NO2. NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. NO2 इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका एसिडिटी बढ़ा देगा. देखो ये 4.2 है तो ये 3.14 है, इसका लोअर वैल्यू है. और ये मिथाइल ग्रुप जो हमारा है वो कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा और रिंग कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा? COO से लेगा तो H इजीली मिलेगा. लेकिन यहाँ पे CH3 रिंग इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन रिंग COO को देगा, H नहीं फॉर्म होगा. इसका मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए इसका 3.4 मोर एसिडिक है. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसलिए एसिडिक पावर उसका वीक है. तो आई विल राइट डाउन द सेंटेंस हियर.
sentence, that is the electron withdrawing groups increases electron withdrawing group increases the acidity of substituted benzoic एसिड। देखो ये हमारा बेंजोइक एसिड है, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। मतलब ये बेंजोइक एसिड है और अगर यहाँ पे उसके आजू बाजू में अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसका एसिडिक पावर बढ़ेगा। लेकिन अगर while electron donating group decreases the acidity of benzoic एसिड। मतलब ये हमारा बेंजोइक एसिड है, लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो बेंजोइक एसिड का एसिडिटी क्या करेगा, कम। सो व्हाइल द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ व्हाट, बेंजोइक एसिड। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से है, लाइक फॉर एग्जांपल Cl, Cn एंड NO2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ग्रुप अगर रहेंगे तो एसिडिटी बढ़ा देंगे। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप like CH3, OH, OCH3 एंड NH2। मतलब अगर बेंजीन रिंग को ये ग्रुप अगर अटैच करेंगे तो उसका एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी। मतलब ये ग्रुप अगर रहेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप decreases the acidity, electron withdrawing donating group decreases the acidity, correct? कौन से, CH3, OH, OCH3 and NH2। okay, yes, so this complete lecture has gone into what, acidic behavior of carboxylic acid। the carboxylic acid का acidic behavior कभी बढ़ेगा कभी कम होगा उसके बारे में हमने देखा। okay, yes, so we'll stop it over here and the remaining part we'll do it in the next day।